Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with the name of Allah, who is the most gracious, the most merciful. I hope you will find. Now in this video clip we are going to discuss verbs and its kinds. First of all, they are asking you in the grammar, page number 51, to identify the helping verbs in each sentence. In this page, they have given some sentences and they are asking you to identify the helping verbs in each sentence. So first of all, you should know about the helping verb, that what are the helping verbs and what are the kinds of helping verbs. So we are simply and shortly discuss verbs and its kinds. First of all, what is verb? So verb is a word which shows an action. For example, I say I drive a car. So the drive word shows an action. Drive means to drive a car. So verb is divided after that into two kinds. One is helping verb and second is main verb. Then helping verb is further divided into two kinds. One is simple helping verb, one is modal helping verb. Simple helping verb is further divided into three kinds. One is do helping verb or do auxiliary, second is be auxiliary, and third is have auxiliary. Do auxiliary contain do, does, and did, and be contain is, are, am, was, were, and have, has, and had. And modal helping verbs are can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, etc. These helping verbs, simple helping verbs, they shows us that what tense is it. And modal helping verbs shows us that what is the mood of the speaker. It shows us that what is the mood of the speaker, what the speaker wants. He shows possibility or ability, or he wants permission, etc. Or he shows obligation for something. So first of all, you should know that these all are helping verbs. Do, does, did, is, are, am, was, were, have, has, had. These are simple helping verbs, and these are modal helping verbs. Can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to. Now in book they have given you some sentences and they are asking you to identify the helping verbs in each sentence. यहाँ सबक में उन्होंने जुमले आपको दिए हैं और सिर्फ आपसे ये पूछते हैं, आपसे ये कहते हैं कि इन जुमलों में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जरा उसको सर्कल करें या अंडरलाइन करें. जहां भी किसी सेंटेंस में डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड ये अल्फाज हो तो फिर वो क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब्स होंगे. कभी कभार ये डू, डज या डिड और इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड ये कभी कभार मेन वर्ब की जगह भी आते हैं, लेकिन यूजुअली जो ये होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं. मेन वर्ब्स कब आएंगे? मेन वर्ब उस वक्त आते हैं जब इसके साथ मेन वर्ब ना हो. जब मेन वर्ब ना हो तो ये खुद मेन वर्ब होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं आई एम अ टीचर. अभी इसके साथ दूसरा मेन वर्ब नहीं है. जब दूसरा मेन वर्ब ना हो तो फिर ये एम जो है ये खुद बहुत मेन वर्ब है, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंकिंग वर्ब या इनकम्प्लीट वर्ब फिर कहते हैं. और जब इसके साथ मेन वर्ब हो, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि आई एम गोइंग, तो यहाँ गोइंग मेन वर्ब है. जब मेन वर्ब हो तो फिर ये क्या बनते हैं? ये ऑक्सिलरी जो है ये फिर हेल्पिंग वर्ब बनते हैं. ये सिर्फ मेन वर्ब के साथ टेंस मालूम करने में मदद देती है. इसके अलावा अगर मेन वर्ब ना हो तो फिर ये खुद बखुद जो है ये फिर मेन वर्ब होते हैं. अभी आपसे बस यही पूछते हैं कि ये जुमले उन्होंने दिए हैं, बस जब इन जुमलों में ये अल्फाज हो तो ये हेल्पिंग वर्ब है. आपको सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब मालूम करना है. मिसाल के तौर पर पहले जुमले में है माय सिस्टर हैज प्रॉमिस्ड टू कम विद अस टू बुनेर. हैज प्रॉमिस्ड, अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो आपको मालूम है कि हैव, हैज, हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है.
तो हैज इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह बाकी जुमले जो है ये भी आसान है, आपको बस ये हेल्पिंग वर्ब इसमें मालूम करना है, अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है। इसके अलावा पेज नंबर 52 पर उन्होंने लिंकिंग वर्ब दिए हैं। लिंकिंग वर्ब किसी कहते हैं? लिंकिंग वर्ब अ वर्ब दैट लिंक्स द सब्जेक्ट विद द कंप्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब क्या है? दैट लिंक्स द सब्जेक्ट विद द कंप्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ लिंक करता है, मुंसलिक करता है, इसे हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ जुमला लिखा आई एम अ टीचर, तो ये आई जो है ये सब्जेक्ट है और इसका कंप्लीमेंट क्या है? अ टीचर है। अगर मैं इसके दरमियान मैंने एम लगाया तो ये एम ने क्या किया? ये लिंकिंग वर्ब है। इसने सब्जेक्ट और टीचर जो कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के दरमियान राब्ता पैदा किया, इन दोनों को लिंक किया। सिर्फ लिंक करने के लिए हम लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम, वाज, वर, बिकम, सीन एटसेट्रा। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये भी लिंकिंग वर्ब है। बी ऑक्सिलरीज जितने हैं, प्रेजेंट की जो बी ऑक्सिलरी है इज, आर, एम, और पास्ट की जो बी ऑक्सिलरी है वाज, वर, और इसके अलावा जो बिकम है, सीन है, ये भी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब्स को हमें इनकम्प्लीट वर्ब इसे भी हम कहते हैं। लिंकिंग वर्ब को हम इनकम्प्लीट वर्ब भी कहते हैं क्योंकि ये अपने कंप्लीमेंट के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं, पूरा माना नहीं देते। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं आई बिकम, मैं बनता हूं, मैं बन जाता हूं, क्या बन जाता हूं, तो ये इनकम्प्लीट वर्ब है, अपना पूरा माना नहीं देते। इसके साथ हम एक कंप्लीमेंट लगाते हैं तो फिर पूरा माना देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं आई बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनता हूं या डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो ये बिकम जो है ये क्या है? ये एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के दरमियान लिंक पैदा करता है। तो आपने ये मालूम किया कि लिंकिंग वर्ब क्या है? वो वर्ब है जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के दरमियान लिंक और राब्ता पैदा करता है। और लिंकिंग वर्ब है कौन से? इज, आर, एम, वाज, वर, बिकम, सीन एटसेट्रा, ये जो है ये लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा मिसाल के तौर पर उन्होंने यहाँ लिंकिंग वर्ब की दो मिसालें भी दी है। फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टूडेंट, तो एम जो है इसमें लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा यू सीम ड्राउजी, आप जो है ड्राउजी ख्वाबीदा दिखाई देते हो, तो ये क्या है? सीम्स, या ही सीम्स, या ही लुक्स, लुक्स भी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ही लुक्स हैप्पी, वो ही लुक्स वो दिखाई देता है किस तरह? हैप्पी, खुशहाल, यानी वो खुशहाल है। तो लुक्स जो है, सीम्स है, बिकम है, और इसके अलावा जो लिंकिंग वर्ब्स है बी ऑक्सिलरीज है, ये सब के सब जो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब्स है। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स, पेज नंबर 52 पर लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है? लास्ट पॉइंट से पहले मॉडल वर्ब्स है। आपसे ये कहते हैं रीराइट द सेंटेंसेस एंड यूज द वर्ब्स कैन, मे और मस्ट। यहाँ उन्होंने जुमले दिए हैं, शी विल रिटर्न टुनाइट, शी डैश रिटर्न टुनाइट। यहाँ उन्होंने ये जुमले दिए हैं और इन जुमलों में आपसे ये कहते हैं कि इन जुमलों में कैन, मे और मस्ट लगाइए। कैन, मे और मस्ट लगाइए। जहां कैन मुनासिब हो तो कैन लगाइए, जहां मस्ट मुनासिब हो तो मस्ट लगाइए, और जहां मे मुनासिब हो तो मे लगाना चाहिए। तो कैन हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? कैन वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पॉसिबिलिटी शो करना हो, जहां एबिलिटी शो करना हो। मिसाल के तौर पर आई, मेरे मुझ में और मुझे एक एबिलिटी हासिल है। वो एबिलिटी क्या है? मिसाल गाड़ी चलाना, ये एक एबिलिटी मुझ में है, तो मैं अपनी एबिलिटी जाहिर करने के लिए कैन इस्तेमाल करूंगा। मिसाल के तौर पर आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार, तो ये कैन मेरी एबिलिटी को जाहिर करता है। आई कैन ड्राइव अ कार, मैं एक गाड़ी चलाता हूँ। मिसाल माना मतलब क्या है? यानी मुझ में एक काबिलियत है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। इसके अलावा मैं जो है, मैं हम इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां इम्कान हो किसी
काम का, किसी चीज का, किसी के आने का, तो हम में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन टुमारो, शायद कल बारिश होगी, तो बारिश का एक इम्कान है, इम्कान के लिए हमने में इस्तेमाल किया, इट मे रेन टुमारो. और इसके अलावा मस्ट जो है, मस्ट हम ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं आई मस्ट गो या यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम जरूर स्कूल जाओगे. तो ऑब्लिगेशन के लिए, किसी वाजिब और लाजमी चीज के लिए हम मस्ट को इस्तेमाल करते हैं. अभी उन्होंने जुमले दिए हैं, इन जुमलों में जहां कैन मुनासिब हो तो कैन, जहां मैं मुनासिब हो तो मैं, और जहां मस्ट मुनासिब हो तो मस्ट लगाना चाहिए. मिसाल के तौर पर पहला जुमला है शी विल रिटर्न टुनाइट, वो नाइट को, आज रात वो रिटर्न करेगी. शी डैश रिटर्न टुनाइट, तो इसकी रिटर्निंग का एक इम्कान है, तो हम इम्कान के लिए यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं इस्तेमाल करेंगे. शी मे रिटर्न टुनाइट, शी विल रिटर्न टुनाइट, इट मींस इम्कान है उसके आने की, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शी मे रिटर्न टुमारो. दूसरा जुमला जो है वो क्या है, डोंट स्टैंड अप, खड़ा मत हो, यू डैश स्टैंड अप, तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यू मस्ट नॉट स्टैंड अप. डोंट स्टैंड अप किसी को अमर है, हुक्म है कि, और किसी को मना करना है एक काम से. जब मना करना है तो इस पर जोर भी देना है, लेकिन मना करना एक तरह का नेगेटिव काम है, तो इसके लिए हम मस्ट इस्तेमाल करेंगे और मस्ट के साथ नॉट लगाएंगे, यू मस्ट नॉट स्टैंड अप. इसी तरह बाकी जुमले जहां कैन मुनासिब हो तो कैन, जहां मैं मुनासिब हो तो मैं, ये वगैरह लगाना चाहिए. आपको ये मालूम करना है. जहां भी कोई मुश्किल हो आपको, तो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को मेंशन करें, इसके बाद इंशाल्लाह हम इसका जवाब आपको देंगे. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल वर्ब्स. नेक्स्ट पॉइंट है पेज नंबर 52 पर लास्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल वर्ब्स. उन्होंने मॉडल वर्ब्स दिए हैं, मॉडल वर्ब दिए हैं could, could not, should not, must not, may not, can and cannot. उन्होंने ये मॉडल वर्ब दिए हैं. बस ये मॉडल वर्ब जो है ये आपको इन खाली जो जगह है उनमें ये लगाना है. मैंने पहली भी आपको बताया, ये कैन, कुड जो है, शल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, एटसेट्रा, ये सब के सब जो है ये क्या है, ये मॉडल वर्ब्स है. और मॉडल वर्ब शोज द मूड ऑफ द स्पीकर, ये स्पीकर की मूड को जाहिर करता है. कभी कभार उस ये जाहिर करता है कि स्पीकर परमिशन चाहता है, कभी कभार किसी बात पर वो जोर देता है तो ये जाहिर करता है, कभी कभार किसी काम के इम्कान को जाहिर करता है. ये सब के सब जो है मॉडल वर्ब्स है. कैन और कुड जो है ये हम बस एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर मेरे साथ, मुझ में ये एबिलिटी है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ, तो मैं कैन इस्तेमाल करूंगा. आई कैन ड्राइव अ कार, यानी मुझ में ये काबिलियत है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ. कैन इस्तेमाल, कैन जो है ये प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, और कुड जो है ये पास्ट में. आई कैन ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता हूँ. आई कुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता था. इसी तरह शल, शुड हम ऑब्लिगेशन के लिए, किसी काम पर जोर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह विल, वुड जो है ये सिर्फ इरादे को जाहिर करता है. इसी तरह मे, माइट जो है ये इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो इन जुमलों में मिसाल के तौर पर पहला जुमला है आई डिडंट फील वेल यस्टरडे. मैं यस्टरडे, कल जो था, कल मेरा सेहत यानी अच्छा नहीं था. तो इसके बाद उन्होंने जुमला दिया है और डैश में उन्होंने खाली जगह छोड़ा है, आई डैश ईट एनीथिंग. तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई कुड नॉट ईट एनीथिंग, यानी कल मेरा तबीयत खराब था इसलिए आई कुड नॉट ईट एनीथिंग, मैं कोई चीज का न सका, कुड नॉट हम इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह इसके अलावा जहां किसी काम पर, किसी बात पर जोर देना हो तो शल, शुड इस्तेमाल करेंगे. इम्कान जाहिर करना हो तो कैन, कुड इस्तेमाल करेंगे. और जहां इम्कान जाहिर करना हो तो मे, माइट इस्तेमाल करेंगे. और जहां एबिलिटी जाहिर करना हो तो कैन, कुड इस्तेमाल करेंगे. जहां भी आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में मुश्किल हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इसके बाद इंशाल्लाह हम जवाब देंगे. नेक्स्ट जो है वो इंफिनिटिव्स है. इंफिनिटिव्स मींस
infinitive means base form of the verb without tense, usually followed by to indicate the purpose of an action. infinitive जो है ये क्या है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का वो बेसिक फॉर्म है जो हम यूजुअली डिक्शनरी में सर्च करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं, infinitive कहते हैं। लेकिन उमूमन ये जो है विदाउट टेंस, ये टेंस को जाहिर नहीं करते, ये इंफिनिटिव जितनी भी है ये टेंस को जाहिर नहीं करता। ये हम प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में भी इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर में भी इस्तेमाल करते हैं। हर टेंस में जब हम इसको इंफिनिटिव को इस्तेमाल करते हैं तो ये वही सेम वर्ब आते हैं, और यूजुअली फॉलोड बाय टू, ये टू के बाद आते हैं, कभी यूजुअली उमूमन ये टू के बाद आते हैं, और कभी कभार टू की बगैर भी आते हैं। टू की बगैर जब आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, फिर उसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, और जब टू के साथ आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी भी ये इन्फिनिटिव, बस सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं। और इसका मकसद क्या है, मकसद इसका ये है टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ एन एक्शन, किसी काम के मकसद को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर मैं बाजार जाता हूँ, बाजार किस लिए जाता हूँ, तो इसके बाद मैं इंफिनिटिव वर्ब इस्तेमाल करूंगा, और इंफिनिटिव वर्ब मेरे मकसद को जाहिर करेगा। मिसाल के तौर पर आई गो टू बाजार टू बाय बुक्स, मैं बुक्स खरीदने के लिए बाजार जाता हूं। तो ये मिसाल जो है आई गो टू बाजार, यहाँ टू जो है ये वर्ब लिंकिंग, ये क्या है, इन्फिनिटिव नहीं है, क्योंकि इसके बाद बाजार जो है ये वर्ब नहीं है, इसलिए ये इन्फिनिटिव नहीं है। ये टू बाय जो है ये क्या है, इन्फिनिटिव है। टू के बाद जब वर्ब आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ये काम की मकसद को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर मैं बाजार जाता हूँ, बाजार किस लिए जाता हूँ, टू बाय बुक्स, किताब खरीदने के लिए। तो ये टू बाय जो है ये हमारे बाजार जाने के मकसद को जाहिर करता है। इसके अलावा उन्होंने क्या दिए हैं, अ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टेंस, मिसाल के तौर पर टू वर्क और वर्क, टू जंप और जंप, टू स्नीज और स्नीज, यानी कभी कभार वो टू की बात आते हैं इन्फिनिटिव, और कभी कभार टू की बगैर भी आते हैं। ये सब के सब जो है ये क्या है, इन्फिनिटिव्स है। इसके अलावा आपसे ये पूछते हैं, ये कहते हैं यूज द फॉलोइंग वर्ब्स एज इन्फिनिटिव इन योर ओन सेंटेंसेस। उन्होंने ईट, स्पीक, स्मैश, टॉक, हेल्प ये अल्फाज दिए हैं, ये आपको खुद एज एन इन्फिनिटिव वर्ब इस्तेमाल करना है। बस जुमले में इसको इस्तेमाल करना है और इससे पहले टू लगाना है। मिसाल के तौर पर ईट है, आई वांट टू ईट मैंगो, स्पीक है, आई वांट टू स्पीक समथिंग। तो ये क्या बनता है, अभी ये क्या बनता है, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। इसके अलावा आखिर में क्या है, आखिरी पॉइंट है टू एक्नॉलेज अदर्स कंट्रीब्यूशन। In fair, develop a dialogue on appreciating your teacher for her contributions. Following are some expression on how to acknowledge others' contribution. यहाँ उन्होंने ये जुमले दिए हैं। ये इन जुमलों का मकसद क्या है, अगर किसी ने आपके साथ कोई एहसान किया या कोई आप के साथ कोई हेल्प किया वगैरह जो भी किया, और आप इस काम के कदरदानी करते हो, उसका शुक्रिया अदा करते हो, तो शुक्रिया किन अल्फाज से अदा करना है। तो यहाँ उन्होंने आपको मुख्तलिफ मिसालें दी है। मिसाल के तौर पर वो क्या है, पहला मिसाल उन्होंने दिया है कि आप उस शख्स को क्या कहेंगे, ये कहेंगे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई वेरी ग्रेट एप्रिसिएशन टू यू। इसी तरह या इन अल्फाज से आप उसका उसे एप्रिसिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई वुड लाइक टू ऑफर माई स्पेशल थैंक फॉर यू, या एडवाइस, या किसी ने आपको एडवाइस दिया तो इसका शुक्रिया आप किस तरह अदा करेंगे। इसी तरह दैट एडवाइस गिवन बाय यू हैज बीन अ ग्रेट हेल्प इन माय स्टडीज। यहाँ इसमें क्या है, यहाँ इसमें खाली जगह है और इसमें उस शख्स का थोड़ा सा एप्रिसिएशन करना है, और इन एप्रिसिएशन को एक डायलॉग में भी आप पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी एक शख्स ने आपके साथ हेल्प किया तो इसके बाद आप ये कह सकते हैं आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माय ग्रेट
یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو I would like to present very great thanks for you یا ایٹسٹرا مختلف الفاظ سے یہ آپ اس کا اپریسیشن آپ کر سکتے ہیں, اس کے کام کا آپ قدردانی کر سکتے ہیں. جہاں بھی آپ کو مشکل ہو کسی کام میں تو آپ اس مشکل کو, اس سوال کو, اپنے سوال کو اپنے کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. آج کے لیے بس اتنا کافی. نیکسٹ ویڈیو کلپ میں ہم انشاءاللہ یونٹ 6 کو ڈسکس کریں گے. بس آج کے لیے اتنا کافی. والسلام علیکم.